Hi, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. So, what's up? कुछ किया आप लोग? सर चैट बॉक्स এ আমি একটা লিংক পাঠিয়েছি স্যার। हाँ, टीना। হ্যাঁ স্যার একটু কোথায় ভুল আছে একটু বলবেন স্যার। एक ओपन करके रखा हुआ हूँ। यही है ना? হ্যাঁ স্যার। टीना आर्ट अकेडमी। Okay. The logo that okay. So, yeah, Tina. Tina, you have created this online class, you have gallery, you have contact us, so you have done this. Open 24 hours. All right, update about us, gallery and contact. Okay, so about us, you have kept something, so you need to write something over here, right? And then you have gallery. Yes, sir. Gallery, you have kept it. So now structure is finished. Now you can keep on updating whatever the content that you want, whatever the things that you want to keep on updating it. Okay. Yes, sir. Call now is there, get direction is there, and you कॉन्टैक्ट एक गेट कोट या कॉन्टैक्ट का एक फॉर्म आता है ना, वो भी आप लगा लो, अगर ऊपर में आ जाए लगा लो तो बेहतर है. Yes, sir. Otherwise it's also okay, not an issue. Okay, so this is about Yes, sir. your this is fine. So we are good to go. That's okay. और ये किसका है? दूसरा लिंक है रीमैक्स प्रोडक्शन. सर मेरा विश्वजय. विश्वजय, ठीक है. Remax production. Okay, so you have this Remax production update. We are open now. यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स लेके आ गया Remax production. So कहाँ से, गूगल से लेके आए क्या है? नहीं ऐसे ही, मतलब मेरा किसी दोस्त लोगों को बोला था कि टाइप कर देने के लिए. ठीक है. So they have done it. Good services. So you have written a paragraph. You have gallery. You have video. You have contact. You have contact us. Right. कॉल नाउ हो गया आपका. अपडेट्स. Okay, then you have testimonials, then you have about us. This is what required for all of you, that you try to add. You get lot of options to add. अब इसको क्या कर सकते हो? This one you can try to make this about us के section को अगर आप ऊपर करो, ठीक है? अच्छा अच्छा. हाँ, वो ऊपर कर लो, गैलरी उससे ऊपर करो, फिर उसके बाद टेस्टिमोनियल. टेस्टिमोनियल्स थोड़ा नीचे आएगा कॉन्टेंट के ऊपर. हाँ, कॉन्टैक्ट के ऊपर टेस्टिमोनियल और अपडेट को भी थोड़ा सा नीचे कर लो, तो आपका क्या होगा कि ऑर्डर में आ जाएगा. ठीक है, ठीक है, कर लेंगे चेंजेस. दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन जो भी गूगल माय बिजनेस पे बना रहे हो, कि दिस लुक्स लिटिल ओके टू मी in terms. I'm like everyone is getting same option, only thing is like you need to make little try. ठीक है, अब कॉन्टैक्ट अस पे जैसे गए तो यहाँ पे आपको फॉर्म भी आ गया. वही मैं अभी टीना को बोल रहा था, जैसे आप कॉन्टैक्ट का एक फॉर्म अगर डाल दिए तो अच्छा है. And call now is also there, get direction is also there. So this is okay. I'm like you don't get option to put a logo over here, but thing is ये आपको पूरा का पूरा ऑप्शन मिल जाता है. And this is how we can start working on this for promotion of your website in terms of paid promotion या फिर Google promotion जैसे भी है हम इसको कर सकते हैं. Nice. So this is also okay. For me this is okay. We can start working from here. Okay. और किसी का कुछ है बताने का? In case anyone, otherwise we'll move on to the next topic. किसी का और फिनिशिंग है, कुछ करके आए हैं, या फिर shall we go ahead with the further topic?
तो हम आज जो है थोड़ा सा कीवर्ड सिलेक्शन के ऊपर बात कर लेंगे कि कैसे गूगल में कैसे कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, या गूगल में कीवर्ड कैसे हमारा आता है, गूगल कैसे सजेस्ट करता है कीवर्ड। और आप में से ही जैसे अभी रीमा प्रोडक्शन का है, रीमा इसका बिस्वा का है, मैं उसी यूआरएल को लेके कैसे गूगल उसको सजेस्ट करता है उसको दिखाते हुए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सो दैट आप लोगों को एक स्ट्रेंथ बन के आ जाएगा। ठीक है, सो लेट मी नो अगर किसी को कुछ और डिस्कस करना है तो ठीक है, अदरवाइज आई मूव ऑन टू गूगल कीवर्ड सिलेक्शन टॉपिक। All right, so I understand that it's okay, and then we are moving for Google selection topic. ठीक है, तो मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देन वी विल मूव फ्रॉम देयर। ओके, ठीक है, ये देखो आपके सामने गूगल सर्च बॉक्स दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको गूगल कीवर्ड प्लानर, क्या है, गूगल कीवर्ड प्लानर, ये आपको टाइप करना है। तो आपको गूगल कुछ ऑप्शन दे देता है कि गूगल के टूल्स हैं जो कि आपको ऑप्शन देता है, तो आपको धीरे धीरे उस फॉर्मेट में आपको जाना है। ओके, तो अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो चूजिंग द राइट कीवर्ड टू यूज गूगल एड्स। ठीक है, तो मैं गूगल में सर्च करके गया हूँ, अदरवाइज भी आप ads.google.com अगर ओपन करोगे तो भी वहीं पहुंचोगे, और अगर आप गूगल में सर्च करके जाओगे तो भी आप वहीं पहुंचोगे। तो आपको करना क्या है, आपको गूगल में जाके आपको एक ओपन करना है ads.google.com, ये आपको ओपन करना है। ओके, जब आप ये ओपन करते हो तो ये क्या करता है, आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स की तरफ लेके जाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ फिर भी मेरे को यहाँ पे लेके आया। राइट, तो जैसे ही आपके पास ये स्क्रीन आएगा, आप अपने जीमेल अकाउंट से, यू शुड हैव अ जीमेल अकाउंट, नो रेडिफ, नो याहू, नो हॉटमेल, इट विल ओनली वर्क इफ यू हैव जीमेल अकाउंट। ठीक है, तो अगर आप लोगों का गूगल एड अकाउंट नहीं बना हुआ होगा, अगर नहीं, फॉर श्योर नहीं बना हुआ होगा, तो आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो ये आपसे कुछ इनपुट लेगा, वो हम देख लेते हैं क्या क्या इनपुट्स ये पूछता है। सिंस चूंकि मैं ऑलरेडी जो है गूगल अकाउंट में हूँ, मेरा ऑलरेडी एड अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए क्या कर रहा है, ये जो भी मेरे अकाउंट्स हैं उसको ये दिखा रहा है। बट मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ, सो दैट आप लोगों को आसानी होगी कि हम लोग समझ सकें कि भाई है क्या ये। ठीक है, मैं तो यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं लॉग आउट कर लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा, मतलब मैं फिर से बैक होके ये करूँगा, तो ये मेरे को गेट स्टार्टेड करके क्लिक करता है। अब ये मेरे से पूछता है कि आप कौन से अकाउंट से साइन इन होना चाहते हो। तो आपका जो भी जीमेल अकाउंट होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो जीमेल अकाउंट है मैं उससे लॉग इन करना चाहता हूँ, तो यूजर नेम पासवर्ड सब पूछेगा और उसके बाद मैं लॉग इन हो जाऊंगा। जैसे ही लॉग इन होऊंगा, वो वहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, और डिटेल्स पूछने के बाद आपके सामने भी इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा। तो चूंकि हम बहुत सारे अकाउंट्स हैंडल करते हैं, हमारे क्लाइंट के बहुत सारे अकाउंट्स रहते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जहाँ तक जाना है वहाँ तक मैं लेके आपको जा रहा हूँ। जब आप फाइनली लॉग इन कर जाओगे गूगल ads.google.com में अपने अकाउंट यूज़र आईडी के साथ, तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आएगा। चूंकि आप अभी कोई कैंपेन रन नहीं किए हो तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे एक आप देखोगे कि आपको टूल्स एंड सेटिंग्स करके एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को टूल्स एंड सेटिंग्स करके? ये देखो, मैं आंसर दिखाई दे रहा है ना? यस सर, यस सर, हाँ सर। यस सर। टूल्स एंड सेटिंग्स पे आप जब क्लिक करोगे तो ये आपको देता है प्लानिंग। ठीक है, टूल्स एंड सेटिंग्स पे जब क्लिक करेंगे तो क्या देगा, प्लानिंग। प्लानिंग पे क्लिक करेंगे तो परफॉर्मेंस प्लानर, कीवर्ड प्लानर, रीच प्लानर, तो हम कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कर रहे हैं। राइट, तो हमने गूगल में भी क्या सर्च किया था, गूगल कीवर्ड प्लानर। तो जैसे ही हम जाते हैं तो गूगल कोई भी चीज, अनलेस अनटिल आप लॉग इन नहीं करोगे, गूगल आपको ज्यादा डेटा नहीं देता। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है,
के डिस्कवर न्यू कीवर्ड और गेट सर्च वॉल्यूम फॉर फोरकास्ट। ठीक है, तो अब न्यू कीवर्ड हमको आइडेंटिफाई करना है। न्यू कीवर्ड तो मैं ये जान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी इंडस्ट्री के लिए अपने लिए कोई भी कीवर्ड का कुछ भी पता नहीं है। एज्यूमिंग दैट यू डोंट नो एनीथिंग, तो हम क्या करेंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाएंगे। ये दो ऑप्शन देता है आपको, स्टार्ट विद कीवर्ड्स और दूसरा देता है स्टार्ट विद वेबसाइट। ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसका यहाँ पे, टीना व्हाट वाज योर वेबसाइट अबाउट? टीना आपके वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड था? सर हाँ, आपकी वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है? আমার ওয়েবসাইট গুগলের সাথে আছে স্যার। नो, व्हाट इट इज रिलेटेड टू? सर इट इज ए आर्ट एकेडमी। आर्ट एकेडमी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ आर्ट एकेडमी। ओके, ठीक है, ये एक कीवर्ड मैंने टाइप किया। दूसरा कुछ और बताओ इसी से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड। आर्ट गैलरी, आर्ट एकेडमी, लर्न, फॉर एग्जाम्पल लर्न आर्ट। ओके, मैं ये दो कीवर्ड दिया हूँ। ड्राइंग ड्राइंग। हाँ ठीक है, ड्राइंग, लर्न ड्राइंग और ड्राइंग एकेडमी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये तीन कीवर्ड हमने डाला और उसके बाद हम गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे, तो आप देखिएगा कि गूगल आपको कुछ सजेस्ट करेगा। राइट, गूगल क्या करेगा, गूगल आपको सजेस्ट करेगा। क्या सजेस्ट किया है ये देखो, आर्ट एकेडमी जो हमने सर्च किया दैट इज 590, लर्न आर्ट 480, ड्राइंग एकेडमी 1330। ओके, so this is basically average number of searches happening in Google per month, यानी एक महीने में इतने लोग कम से कम गूगल में इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं इन इंडिया। यहाँ पे देख रहे हो आप ऊपर में इंडिया वर्ड आ रहा है यहाँ पे। Yes, sir. ठीक है, इंडिया आ रहा है ना, तो इंडिया में एवरेजली पर मंथ इतने लोग सर्च कर रहे हैं। अब आपने जो इनपुट दिया है उसके बेसिस पे गूगल आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। फॉर एग्जाम्पल फरजाना ड्राइंग एकेडमी, इट कुड बी अ ड्राइंग एकेडमी नेम फरजाना। ठीक है, रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स, ऑनलाइन ड्राइंग क्लासेस, लर्न कैलीग्राफी, ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस। तो आपने ड्राइंग क्लासेस, पेंटिंग क्लासेस या आर्ट क्लास, आर्ट एकेडमी डाला, गूगल उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो निकाल के आपको दे देता है, इतने सारे कीवर्ड्स दे देता है। कितने कीवर्ड्स दे रहा है ये? यू कैन सी इट इज 1074 कीवर्ड्स गूगल ने आपको आइडिया दे दिया है नहीं? यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे मेरा माउस दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आपने कितना इनपुट दिया? आपने सिर्फ 3 दिया। यू हैव गिवन 3 इनपुट्स एंड गूगल हैज गिवन 1000 आउटपुट। तब इसमें आपसे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हो सकते हैं, जो लगता है कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कीवर्ड है, उसको आप चूज कर सकते हो और चूज करके एक्सेल शीट में आप उसको ड्राफ्ट कर सकते हो। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, इंडिया की जगह पे मैं इंडिया नहीं, मैं सिर्फ कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कोलकाता का एक सिटी में मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरा सर्च वॉल्यूम क्या होगा। तो आप ये देखिएगा कि जैसे ही मैंने कोलकाता किया, क्या हो गया, यहाँ पे उतना डिटेल नहीं पता चल रहा है, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा सर्चेस का नो आइडिया सेटिस्फाइंग करंट फिल्टर। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया कि भाई इंडिया से रिलेटेड अगर कर रहे हैं तो दिख के आ रहा है, कोलकाता से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट नहीं दे रहा है। अगर हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल कर रहे हैं तो देखते हैं क्या देता है। तो अगर आप किसी सिटी से रिलेटेड करना चाहते हैं तो भी आपको कभी कभी ये ऑप्शन मिल जाता है। देखिए मैंने वेस्ट बंगाल किया है, यहाँ पे कुछ डेटा आपके सामने आ गया कि आर्ट एकेडमी से 70, लर्न आर्ट से 30, ड्राइंग एकेडमी से इतना, बाकी फरजाना ड्राइंग एकेडमी, इट मीन्स ये शायद कोलकाता के अंदर ही या वेस्ट बंगाल के अंदर ही ये कोई एकेडमी होगा, रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे आई थिंक इट मस्ट बी, बिकॉज अगेन ये ड्राइंग करके आ गया है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये एक प्रोमिनेंट नाम हो सकता है वहाँ पे और गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं। उसी तरह से आप देखोगे यूडेमी ड्राइंग कोर्सेज, ड्रॉ लेसन्स फॉर द बिगनर्स, रॉयल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। तो आप इस तरह से फरजाना ड्राइंग एकेडमी इजी, लर्न टू ड्रॉ फेसेस, so there are lot of things which are coming. Now what is appropriate for you, that you will be extracting it based on your requirement. उसी तरह से अगर मैं इसको चेंज करके मैं कोई और लोकेशन में कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स कर देता हूँ,
राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फोरकास्ट अपनी सिटी या अपनी कंट्री के लिए कर सकते हैं, यू कैन डू इट फॉर anywhere in the world. You can do the searches and see how what kind of searches are happening. अब आप यहाँ पे देखोगे, जब आप यहाँ पे जो ग्राफ दिख के आ रहा है, you will be saying कि टोटल सर्चेस जो हो रहा है उसके अंदर मोबाइल पे सर्चेस हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द यूजर्स आर सर्चिंग स्टफ्स ऑन मोबाइल। सो आपको क्या है, मोबाइल के हिसाब से भी आपको अपनी वेबसाइट के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही मैंने यूनाइटेड स्टेट्स पे सर्च किया तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम हमारा डिफरेंट हो गया, देख रहे, सर्च वॉल्यूम हमारा डिफरेंट हो गया, राइट। तो इसलिए अब यहाँ पे भी फरजाना आ रहा है, तो इट डजंट मीन्स कि वहां पे भी ये बहुत पॉपुलर होगा। थिंग इज लाइक गूगल गिव्स सम रेफरेंसेस। फाइनली आपको अपना निकालना है कि आपसे रिलेटेड कीवर्ड क्या हो सकता है। जैसे लर्न कैलीग्राफी ऑनलाइन, ये आपसे रिलेटेड कीवर्ड हो सकता है। सो व्हाट यू विल बी डूइंग, you will be actually dividing the complete keyword based on or extracting the complete keyword based on the input that you are giving. तो एक ऑप्शन हमारा ये हो जाता है कि हम यहाँ पे जब कीवर्ड्स कुछ डालते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे को गूगल हमें सजेशन दे देता है। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कोलकाता टूर्स एंड ट्रेवल से रिलेटेड किसी एक का वेबसाइट था, ठीक है, तो हम लिख देते हैं कोलकाता टूर्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन वेस्ट बंगाल फॉर एग्जांपल, बेस्ट टूर पैकेजेस, राइट। तो मैं ये 3 कीवर्ड्स डाला हूं। अब देखते हैं गेट सर्चेस में कि यहाँ पे क्या देता है। तो कोलकाता टूर पैकेजेस ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स मैंने कर दिया है, इसको मैं रिमूव करके मैं इंडिया कर देता हूं, जस्ट टू कीप ट्रैक ऑफ हम क्या सर्च कर रहे हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पे कर देते हैं, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे इंडिया कर दिया है, तो ये हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ब्रॉडन योर सर्च, यहाँ पे गूगल भी आपको सजेस्ट कर रहा है कोलकाता ट्रैवल एजेंसी, इसको मैंने डाल दिया। अगर इसको डाल दिया हूँ फिर मैं सर्च करता हूँ तो क्या होगा, और भी कुछ डिटेल्स निकल के आ जाए। उसी तरह से कोलकाता ट्रैवल गाइड, कोलकाता ट्रैवल पैकेजेस, ट्रैवल एजेंसी, कोलकाता पैकेजेस, टूर पैकेजेस, बेस्ट पैकेजेस। तो आपको जो लग रहा है, तो यू हैव गिवन लेस ऑफ कीवर्ड्स, बट गूगल आपको बहुत सारे एक्सटेंडेड कीवर्ड्स आपको दे देता है। तो मैं ट्रैवल गाइड नहीं, कोलकाता ट्रैवल पैकेजेस में सर्च ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब ये ऐड करके मैं देखता हूँ कि भाई क्या दे रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा। तो आप देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो अब यहाँ पे आप देखो, ये जो ग्राफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ग्राफ दिखाई दे रहा है, यस सर। ठीक है। अब आप ये देखो कि ये जून 2020, कोविड कब शुरू हुआ, ऑलमोस्ट मार्च लास्ट ईयर के आसपास कोविड शुरू हुआ। तो आप देखो कि यहाँ पे बहुत ही नैरो सर्च हो रहा था। रीजन क्या है, क्योंकि उस टाइम में लोग ट्रैवल और टूरिज्म के बारे में नहीं सोच रहे थे। जैसे ही अनलॉकिंग शुरू हुआ, थोड़ा सा ओपन हुआ, लोग ट्रैवलिंग शुरू किए, फिर उसके बाद फिर खत्म हो गया। तो आपको ये ऑप्शन देता है, गूगल ऑप्शन देता है कि आप ये भी चेक कर सकते हो कि कौन सी सीजन में किस तरह का रिस्पॉन्स है। तो ये हम लास्ट 12 मंथ्स का सर्च कर रहे हैं, हम चाहें तो लास्ट 24 मंथ्स का भी सर्च कर सकते हैं। तो आप देखिए 2019 में यानी 2019 में सर्च वॉल्यूम्स अच्छे थे, लेकिन जैसे ही मार्च आया ये बिल्कुल ही डाउन हो गया। फिर उसके बाद सितंबर के बाद अनलॉकिंग शुरू हुआ, ऊपर गया। दिसंबर के आसपास लोगों ने ट्रैवल किया, सब कुछ किया, फिर मार्च के बाद अप्रैल आते आते फिर ये डाउन हो गया। तो इस तरह से आपको ट्रेंड भी पता चलता है। तो अगर आपका शॉपिंग रिलेटेड कीवर्ड है, फेस्टिवल रिलेटेड कीवर्ड है, तो आपको ट्रेंड पता चल सकता है कि किस मंथ से शॉपिंग से रिलेटेड या फेस्टिवल से रिलेटेड या दिवाली से रिलेटेड, दशहरा से रिलेटेड, पूजा से रिलेटेड आपका कीवर्ड लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे सर्च करते हैं। तो दिस गिव्स यू ट्रेंड। ये क्या देता है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं देगा आपको, ये ट्रेंड देता है कि विच कीवर्ड यू शुड चूज एंड ड्यूरिंग विच मंथ्स यू शुड टारगेट व्हाट। तो ये आपको थोड़ा सा आपको ऑप्शन दे देता है। बेस्ट ट्रैवल एजेंसी एक अगर मैं कीवर्ड और ऐड कर देता हूं तो आपको और डिटेलिंग पता चल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपके सामने ये आ जाता है। स्टिल दीज सर्चेज आर मंथली सर्चेज। ये आपका पूरा 24 मंथ्स में इतना ही सर्च हुआ ऐसा नहीं है,
divided by total number of searches divided by total number of months is equal to these। अब कोलकाता ट्रेवल पैकेज कम है, बेस्ट ट्रेवल एजेंसी से काफी कुछ है, कोलकाता ट्रेवल एजेंसी से 5400 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोलकाता ट्रेवल एजेंसी का कीवर्ड अगर हम पिक कर रहे हैं, देयर इज ए चांसेस कि अगर उससे अगर हम कीवर्ड अपना रैंक करना शुरू कर दिए तो क्या होगा, हमारे लिए बेहतर होगा। टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन वेस्ट बंगाल, ये भी एक ठीक ठाक कीवर्ड है। बेस्ट टूर पैकेजेस, दैट इज ऑल्सो ओके। अब आपने जो इनपुट दिया है 4 कीवर्ड या 5 कीवर्ड, उसके बेसिस पे गूगल आपको बहुत सारे डेस्टिनेशन, बहुत सारे सजेस्टेड कीवर्ड्स दे रहा है। प्लेसेस टू विजिट नियर कोलकाता, प्लेसेस टू विजिट इन वेस्ट बंगाल, ये सारे आपके कीवर्ड्स। 1 डे ट्रिप नियर कोलकाता, ठीक है। हनीमून टूर पैकेजेस, वीकेंड ट्रिप टू फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता टूरिस्ट स्पॉट्स। तो ये आपको बहुत सारे कीवर्ड्स आपको दे देता है। कितने कीवर्ड्स दे रहा है ये? 696, यानी ऑलमोस्ट 700 कीवर्ड्स आपको गूगल सजेस्ट कर रहा है based on input you have given. For example, you can see Sundarban tour packages from Kolkata. So now someone who is actually doing website, या जब आप कंटेंट बना रहे हो या आपने पेजेस बना रहे हो, तो गूगल क्या करेगा आपको, गूगल आपको ये ऑप्शंस जब दे रहा है आपके कीवर्ड्स के ऊपर, कीवर्ड्स जब आप इनपुट दे रहे हो तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर कीवर्ड, ये पर्टिकुलर कीवर्ड चूंकि गूगल में बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है, तो आप इससे रिलेटेड पेज बना सकते हो या इससे रिलेटेड पैकेज बना सकते हो। जो चीज गूगल पे ज्यादा सर्च हो रहा है उससे रिलेटेड आप अपने बिजनेस को कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिले। जब लोग ज्यादा सर्च करेंगे, आपकी वेबसाइट दिखेगी, तभी आपको बिजनेस आएगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Am I Yes, sir. Yes, sir. am I making sense to all of you? कुछ Yes, आप- sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। ठीक है, चलिए तो मैं, सर हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आप जो बोले ना जो सर्च कर रहे वेबसाइट से, तो वेबसाइट क्या गूगल बिजनेस में जो बनाया था वही सर्च किया गया? अगर आपको कीवर्ड पता है तो आपने कुछ कीवर्ड दिया, ठीक है, तो ये मैं फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं कि कीवर्ड से कैसे आपको गूगल कैसे कीवर्ड देता है। नेक्स्ट स्टेप होगा कि वेबसाइट से गूगल कैसे आपको कीवर्ड सजेस्ट करता है, ठीक है। I'll come to that also, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि अगर आप बेसिक कीवर्ड्स डाल रहे हो तो गूगल आपको कुछ आउटकम देता है, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एनोटेट करके मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूं, ये देखो आप कहाँ गया, हाँ ये आप देखो, यहाँ पे एक एरो नजर आ रहा है आप लोगों को, जहां पे मैं रेड मार्क कर रहा हूं, दिखाई दे रहा है? एक्सट्रीम Yes, sir. एक्सट्रीम Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये जो कीवर्ड्स हैं, जो भी कीवर्ड्स अभी तक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये जो 600 कीवर्ड्स हैं, 700 कीवर्ड्स हैं, ये पूरा का पूरा एक्सेल फॉर्मेट में आपके डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा। अब आप उसमें से जो रेलेवेंट कीवर्ड है वो आप निकाल लीजिए, राइट। दैट बिकम्स योर टारगेटेड कीवर्ड्स फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। समझ गए? दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ कीवर्ड सिलेक्शन। नेक्स्ट लेवल क्या होगा वो मैं फिर आपको बता रहा हूं। अब आप ओके, तो ये यहां तक हम लोग आए। अब हम दूसरे लेवल पे जाते हैं, यानी फर्स्ट लेवल पे गूगल खुद हमको सजेस्ट किया, हमने कुछ कीवर्ड इनपुट डाला, गूगल हमको सजेस्ट किया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं, फिर मैं कहां जाऊंगा, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे गया। तो स्टार्ट विद कीवर्ड्स, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट विद वेबसाइट, यानी आपको वेबसाइट का यूआरएल पता है, आपको वेबसाइट का एड्रेस पता है, लेकिन कीवर्ड नहीं पता। तो उसमें जिस तरह का कंटेंट आप यूज करेंगे उसी हिसाब से गूगल आपको सजेस्ट करेगा, राइट। तो अब आप लोगों में से जैसे जिसने भी यहाँ पे मेरे को यहाँ पे कुछ आए थे, मैं किसी एक का वो उठा लेता हूँ और फिर उसके बाद देखता हूँ कि वहां पे क्या क्या था। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट मैं ले रहा हूँ, मैं आप लोगों को फिर दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके।
ऑलराइट, तो अब आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, गूगल का कीवर्ड प्लानर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ सर, हाँ, Yes, sir. यस सर, यस यस सर। सर। अब मैं यहाँ पे रमा प्रोडक्शन क्या है, रामेक्स यस सर, रामेक्स प्रोडक्शन। रामेक्स प्रोडक्शन डॉट बिजनेस डॉट साइट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ओके, इसी तरह से किसी का भी वेबसाइट डाला जा सकता है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ गेट रिजल्ट्स। तो अब देखिए गूगल आपके कंटेंट को रीड करता हुआ, आपके सर्विसेज उसको रीड करता हुआ कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है। आप खुद देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, वेस्टलैंड स्पा। क्या वेस्टलैंड स्पा के नाम से कोई आपका उसमें लिस्टेड है क्या, कोई क्लाइंट के हिसाब से या कुछ भी? नहीं सर, नहीं है। तो एनीवेज, तो मे बी रिमैक्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एसआर इंडोर स्विमिंग पूल मियापुर, ठीक है, एक्यूरेट पूल एंड लैंडस्केप, लोकल प्राइवेट स्विमिंग पूल। अब ये देखिए कि ये जो यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्यादातर स्विमिंग पूल से रिलेटेड दे रहा है, पता नहीं ये कैसे उठा के दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कंटेंट वहां पे डाला है वो इतना क्लियर नहीं है कि गूगल उसको मैप कर पा रहा है कि भाई वो क्या है। तो इसलिए कैटेगरीज और सब कैटेगरीज अपने को प्रोमिनेंटली डिफाइन करना है। इसीलिए जब आप गैलरी अपलोड कर रहे हो तो वहां पे भी अगर कुछ क्लाइंट नेम है तो उस चीज को मेंशन कर सकते हो। उसी तरह से मैं किसी और का वेबसाइट एक लेता हूँ, किसका था, कोई एक आर्ट का था ना, किसके आर्ट का था? স্যার আমার ছিল স্যার। हाँ, क्या है, टीना टीना आर्ट एकेडमी। आर्ट एकेडमी। टीना आर्ट एकेडमी, ठीक है, ये मैं ओपन करता हूँ, देखते हैं ये क्या देता है। और उसी तरह से आप लोगों में से कोई एक जिसका कि विक्स का साइट कंप्लीट हो, किसका था, आकाश का था, किसी का था ना, विच वॉज क्वाइट कंप्लीट, अदर, वो जिसका प्रोडक्शन हाउस ही था शायद, हाँ किसी का। हाँ सर, मेरा। हाँ, विश्व का। विश्व जरा सा अपना विक्स का साइट का लिंक भी जरा डालो यहाँ पे हाँ चैट सर, में, डाल। चैट में। हाँ सर, मैं आप लोगों को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि मैं इतना जोर क्यों डालता हूँ कि भाई आप लोग वहाँ पे कंटेंट डालिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक टीना आर्ट एकेडमी का मैंने यहाँ पे डाला है, और उसके बाद मैं गेट सर्च रिजल्ट्स कर रहा हूँ कि गूगल इससे क्या रीड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पेजेस से जो हमने जो टेम्पलेट यूज किया है, हमने जो थीम यूज किया है, उससे बहुत ज्यादा गूगल हमारा कीवर्ड नहीं पिक कर पा रहा है। तो ये जब हम कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं अपने कंटेंट को थोड़ा सा हमको इलैबोरेट करना है और उसके ऊपर काम करना है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे अपनी एक वेबसाइट डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डिजिटोज डाल देता हूँ, मेरी कंपनी का वेबसाइट है, मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ तो आप देखोगे कि गूगल हमारी वेबसाइट के कंटेंट को रीड करते हुए क्या कर रहा है, मार्केटिंग स्टार्टअप, बेस्ट मार्केटिंग स्टार्टअप्स, डिजिटल सेल्स स्ट्रैटेजीज, न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, डिजिटल ब्रांड पोजीशनिंग। तो डिजिटल से रिलेटेड, हमारी कंपनी से रिलेटेड, हमारे कंटेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं गूगल उसको उठा के देता है। तो अगर आपकी वेबसाइट पॉपुलर नहीं है, गूगल में उसकी उतनी लिस्टिंग्स नहीं है, तो गूगल आपको उतना एक्यूरेट सर्च वॉल्यूम या कीवर्ड सजेशन नहीं देगा। तो आपको क्या करना हो, आप अपनी वेबसाइट से भी डिफाइन कर सकते हो। गूगल अगर नहीं दे रहा है तो आपका एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है, उसकी वेबसाइट कौन सी कंप्लीट है, उसको देखते हुए हम इस चीज को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे जो हमारे सामने ये जो इसने भेजा है, विश्व ने जो भेजा है, मैं एक बार उसको देख लेता हूँ और उसको भी डाल के देखते हैं कि अगर वहां पे हमारे लिए ये आ जाता है, अगर गूगल हमको दे देता है तो इसका मतलब वहां पे हमारे कंटेंट थोड़े से ठीक यूज हुए हैं। अगर गूगल नहीं देता है तो हम कोई दूसरे के अपना ही कॉम्पिटिटर जो दूसरा होगा उसका वेबसाइट। तो गूगल आपको ऑप्शन क्या देता है, मैं अपना कंप्यूटर का वो लिंक भी आपको भेज दूँ चैट बॉक्स में। हाँ, तो मैं वही चीज है, मैं दो लिंक आप चैट बॉक्स में डाल दो। तो एक ये रामेक्स प्रोडक्शन विक्स साइट, और ये हम डाल के अब इसको हम देख रहे हैं कि इसके अंदर विक्स के साइट पे जो हमारा कंटेंट आया है उससे रिलेटेड गूगल क्या दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि गूगल उससे रिलेटेड आपको कोई खास डेटा नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब ये है कि शायद
हमारा पेज उस तरह का कंटेंट यूज नहीं कर रहा है जिस तरह का कंटेंट होना चाहिए जिसको कि गूगल रीड कर पा रहा है। इसलिए हमको क्या करना होगा, हमको दूसरा कोई एक साइट लेना पड़ेगा जिसको कि हम देख सकते हैं कि भाई वो वेबसाइट अगर ठीक है तो .com तक ले लूं मैं विश्वा, मैं .com ये पूरा लिंक था शायद, वो .com तक भी चलेगा शायद, एक बार आप सर्च करके देख लीजिएगा। मैं अभी देख रहा हूँ, हाँ वही आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है मान ले कि आपको ये समझ में आ रहा है कि अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दूसरे का वेबसाइट डाल के, दूसरे का वेबसाइट जब डाल रहा हूं तो भी मैं उसका कीवर्ड सजेशन निकाल सकता हूं कि गूगल उस कीवर्ड को लेके क्या बता रहा है। ठीक है, ये भी है तो आपका कॉम्पिटिटर, लेकिन उतना पॉपुलर साइट नहीं है जिससे गूगल इसको बहुत ज्यादा डिटेलिंग दे पाए। तो इसका मतलब ये होता है कि हम उनमें से कीवर्ड्स उठाएं जो कि थोड़ा सा कि गूगल में रैंक कर रहा हो और गूगल में परफॉर्मेंस हो रहा हो। मैं कोई दूसरी साइट उठाता हूं, आप लोगों में से किसी की वेबसाइट कंप्लीट है, जिस कंपनी में भी आप लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी का अगर कोई वेबसाइट हो तो। सर वो सुशीत का आप दे सकते हैं सर। हाँ ठीक है, एक मिनट ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। अगर सुशीत साहब आप अपना चैट पे विंडो में आप जो है वहाँ पे लिंक डाल दीजिए ताकि मैं उसको देख लूँ। अच्छा खोलना पड़ेगा। हाँ तो खोलना पड़ेगा, तो खोल के दे दीजिए। मैं हाँ देखो बिल्कुल। अब देखो ये किसका साइट मैंने डाला था, एग्री एक्सपो कोलकाता, क्या है ये, कोलकाता, हाँ कोलकाता क्राफ्ट है, राइट। तो आप देखो कि थोड़ा सा इसके ऊपर अगर थोड़ा सा कंटेंट गूगल रीड कर पाया तो यहाँ पे क्या आया, इंडियन हैंडीक्राफ्ट आ गया, देख रहे। तो इसका मतलब ये वो कीवर्ड है जो कि गूगल रीड कर पाया, आपके कंटेंट में से गूगल कुछ रीड कर पाया है। तो उसी तरह से आप लोग जो है कोई भी कंटेंट, यानी ये मान के मत चलिए कि हाँ ठीक हमको वेबसाइट कंप्लीट करना है, थोड़ा सा अगर आप डिटेलिंग कर दे रहे हैं तो आपको वहां पे काफी कुछ ऑप्शन मिल जाता है। ओके, तो अब जैसे ये साइट मैंने डाला यहाँ पे इंडियन हैंडीक्राफ्ट आ गया, वो कंप्यूटर वाला किसी का साइट था ना, मैक्स कंप्यूटर या किसी का था कुछ, या फार्मेसी वाला जो साइट था किसका था, फार्मेसी वाला। सर मेरा एक साइट भेजा, आप देख सकते हैं। एक मिनट हाँ, एक दीप शिखा प्रिंटर्स आया है, ठीक है इसको मैं देख लेता हूँ। तो ये दीप शिखा प्रिंटर विक्स साइट डॉट माई सिट क्यों डाल दिया भाई, माई साइट भी नहीं है। माई साइट होगा शायद ये, हाँ माई साइट है, ठीक है। ये माई साइट को रीनेम कर दो ना अपने किसी नाम से, फिर आगे भी दीप शिखा डाल दो, सो दैट इट बिकम्स मोर सेंसिबल। ठीक है, ओके सर। मैं यहाँ पे एक और डाल के देखता हूँ क्या देता है ये। नहीं है, उतना सर्च वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों के तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे अगर मैं एशियन पेंट्स की वेबसाइट डालता हूँ, एशियन पेंट्स, ओके, अब मैं सर्च कर रहा हूँ तो आप देखिएगा अपने आप गूगल वहां से वेबसाइट से कीवर्ड्स निकाल के, ये देखिए आ गया ना, अल्टीमा, प्रोटेक्ट, टॉप कोट प्राइस, रॉयल बैंक, एशियन पेंट्स, इतने सारे जो भी एशियन पेंट से रिलेटेड है वो यहाँ पे कीवर्ड्स दिखा के दे दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट, अगर आप अपनी वेबसाइट अगर पॉपुलर नहीं है तो गूगल आपको बहुत अच्छा सजेशन देगा। इसलिए क्या है, गूगल आपको ऑप्शन देता है, या तो आप अपनी वेबसाइट से रिलेवेंट कीवर्ड निकाल सकते हैं, या आप अपने कॉम्पिटिटर के जो कि प्रोमिनेंटली गूगल में परफॉर्म कर रहा है उसकी वेबसाइट निकाल के आप दे सकते हैं। इस तरह से आपके पास ऑप्शन में निकल के आता है कि आप थोड़ा सा अगर वर्कआउट करें तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी और आप जो है दूसरे वेबसाइट्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ किसी और की वेबसाइट जो कि ग्रुप में था, एक आध की वेबसाइट मैं पिक करके आप लोगों के सामने दिखाता हूँ, सो दैट आप लोगों के ये समझ में आ जाएगा
कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ नहीं है। ये मैं एक उठाता हूँ, कॉम्प मैक्स का मैं उठाता हूँ, जस्ट विद आई एम थिंकिंग, आई फील दैट दिस साइट शुड गिव, कुछ इनपुट दे सकता है, मैं ये सोच रहा हूँ, बट इट्स नॉट वेरी श्योर, सो लेट मी ट्राई इट। नहीं दे रहा है, ठीक है, इट्स ओके। सो हमारा इसका मतलब ये है कि अगर हमारी वेबसाइट अगर बहुत पॉपुलर है तो हमारे को बहुत ज़्यादा ये नहीं आएगा। ओके, एक ये है अरीना, हाँ विक्स का एक है, मैं और देखता हूँ जी। जी बोलिए। क्लास 12 से तो हाँ अच्छा, क्लास 12 पे किसी और से सर को म्यूट कर लीजिए ना सर प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइट मैंने अरीना एडवर्टाइजिंग का डाला है, देखो ये बिल्कुल ये थोड़ा सा है, अरीना एडवर्टाइजिंग विक्स साइट करके मैंने डाला है। और तो आप देखो यहाँ पे कुछ रिलेवेंट कीवर्ड्स निकल के आ रहे हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग एजेंसी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी। तो आपके साइट के कुछ कंटेंट से रिलेटेड होने के बाद गूगल कुछ रेफरेंसेस उठा के आपको दे रहा है कि हाँ। तो अब आप ये देखिए कि जब आप अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, पेजेस बना लेते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत कंटेंट या रेलेवेंस आप डालते हैं, तो आपको आपकी वेबसाइट से रिलेटेड भी गूगल आपको कुछ कीवर्ड सजेस्ट करता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपने वेबसाइट पे इमेजेस के साथ साथ कंटेंट्स डालना शुरू करें, जो कि मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप कंटेंट डालना शुरू करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे। बट एनीवेज, मैं आप लोग ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ कपल ऑफ डेज आप अपनी वेबसाइट को जो भी बनाए हैं, चाहे विक्स पे बनाए हैं, चाहे गूगल माई बिजनेस पे बनाए हैं, आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डाल के उसको कंप्लीट करिए। अब मैं आपको उसी तरह का एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे आप लोगों ने ये अरीना एडवर्टाइजिंग का एक आया सामने, तो हमारे सामने कुछ इस तरह के कीवर्ड्स आ गए। उसी तरह से मैं मेरे एक क्लाइंट का विक्स पे एक साइट है, मैं उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डालता हूँ। आप लोग खुद देखिएगा कि चूंकि वो वेबसाइट थोड़ा सा हम लोगों ने उसके ऊपर काम किया है, हम लोगों ने उसके ऊपर एसईओ किया है, तो या कीवर्ड उसके ऊपर ठीक से यूज हुआ है, कंटेंट उसके ऊपर हम लोगों ने डाला है, तो वो गूगल उसको रिएक्ट कर रहा है, यानी गूगल उससे कीवर्ड्स निकाल रहा है। जैसे ये क्या है, नीड फ्रेश, ये एक फ्रेशली कट नॉन वेज यानी फ्लेश, चिकन, मटन और फिश और एग, ये सप्लाई करता है। तो जब हमने इस पे अच्छे से कंटेंट डाला है तो क्या कर रहा है, गूगल उसको रीड कर रहा है, बॉयलर चिकन होम डिलीवरी। तो गूगल क्या कर रहा है, गूगल उसको रीड कर रहा है और उसी के हिसाब से ये दुबई शारजा डिलीवरी, दुबई शारजा, ये सारी चीजें करके फ्रेश मटन, फ्रेश चिकन, होम डिलीवरी, होम चिकन डिलीवरी, तो ये प्रॉपर कर रहा है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली डिफाइन कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट अच्छे से रैंक भी करती है और गूगल उसको रीड भी करता है। अब आपके सामने है, ये आप लोगों को ये नीड फ्रेश का वेबसाइट दिख रहा है विक्स पे, हाँ सर, दिख रहा है ना। हाँ, अब यस सर। ये साइट भी आप लोगों की तरह का ही कोई ट्रेनी बनाया है, लेकिन उसने क्या किया कि इसमें सारे इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली डाला है। ठीक है, आप ये देखिए कि यहाँ पे इमेज आ रहा है, स्लॉटर ऑन योर ऑर्डर ऑल फ्रेश, यानी वंस समवन ऑर्डर्स देन ओनली birds will get cut and then flesh will be delivered। उसके बाद प्रोडक्ट दिया है यहाँ पे, इन लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, उसी तरह से फ्रेश मटन, फ्रेश बॉयलर, इस तरह करके ऑप्शन बाय नाउ रीड मोर, बाय नाउ रीड मोर। तो मैं रीड मोर पे जा रहा हूं, आप देखिएगा कि जब रीड मोर पे जा रहे हैं तो वहां पे क्या है, वहां पे यूआरएल का नाम भी, जो लिंक का नाम भी वो प्रॉपर दिया है, और उसके बाद नीचे आप देखिए कि कंटेंट लिखा हुआ है। तो जो मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि कंटेंट लिखिए, ये विक्स पे ही बना हुआ साइट है ना, ऊपर भी देखो विक्स ही लिखा हुआ आ रहा है, सब कुछ आप ही तरह का है, बट इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे ज्यादा डाला। तो जब इंफॉर्मेशन ज्यादा डाला है तो गूगल लव्स इंफॉर्मेशन, तो आप लोगों को स्लोली, अब टाइम नहीं है लेकिन स्लोली नहीं कहूंगा मैं, यू हैव टू वर्क लिटिल फास्टर, और आप लोगों को थोड़ा सा अपने कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, और काम करके जब अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे तो इसी तरह से आपकी वेबसाइट को गूगल फेच करेगा और गूगल आपके, अब ये प्रोडक्ट्स में आ गए, उसी तरह से आप
तो जो आपने किया है उसी प्लेटफॉर्म से फ्री वेबसाइट से ही यहाँ पे सारी चीजें लेके आया गया है और वहां पे ये सारा कंटेंट भी प्रोवाइड किया गया है, राइट। तो आप थोड़ा सा अगर कंटेंट के ऊपर काम कर लेंगे अपने अपने वेबसाइट्स पे, तो आपकी वेबसाइट के रेफरेंस पे भी गूगल आपको डिटेलिंग देगा। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं, जैसे आप लोगों ने भी इस पे बनाया ना, क्या नाम है, गूगल माई बिजनेस पेज पे आपने एक वेबसाइट बनाया है, जो भी एक पेज बनाया है, उसी तरह से अगर कोई दूसरा गूगल माई बिजनेस का पेज अगर हम देते हैं तो क्या गूगल उससे कीवर्ड सजेशन देता है नहीं देता है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं, सो दैट हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमको किस तरह की वेबसाइट, जब हमको कीवर्ड सजेशन लेना है तो हमको किस तरह की वेबसाइट यूज करना है। जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं ज़रा सा वो साइट निकाल के और आप लोगों को दिखा देता हूँ, देन यू कैन। तो अब देखिए मैं यहाँ पे आपको फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने अपना एक इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस ऐसे ट्रेनिंग के दौरान मैंने एक पेज बनाया था और उसको मैं डाल रहा हूँ गूगल के सजेशन के लिए। ओके, गूगल के सजेशन के लिए मैं डाल रहा हूँ और उसके बाद मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ कि गूगल इससे क्या रेफरेंस देता है। तो चूंकि मैंने भी आप लोगों की तरह सिर्फ इसको एक बार बना के मैंने छोड़ दिया और मैं जब इसको सर्च कर रहा हूँ तो गूगल यहाँ पे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि कीवर्ड सजेशन के लिए हम गूगल माई बिजनेस पेज नहीं, हम कोई prominent.com वेबसाइट या जो विक्स पे भी वेबसाइट है तो जो कंप्लीट वेबसाइट है, तो हम कोशिश करें कि प्रोफेशनल वेबसाइट, जैसे मैंने एशियन पेंट्स का डाला, जैसे मैंने डिजिटोस का डाला, उसी तरह से किसी और एक कंपनी का अगर हम देख सकते हैं तो वहां पे अगर हम डालते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपके लिए अप्रोप्रिएट होंगे। सो नॉट टू वेस्ट मच ऑफ योर गाइस टाइम, हमारे पास एक ऑप्शन ये है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। जब आपको कीवर्ड्स के बारे में कुछ नहीं पता तो आप कुछ कीवर्ड्स डालेंगे और फिर उसके बाद कुछ कीवर्ड्स आप डालेंगे और उसके बाद गूगल आपको सजेस्ट करता है। अगर आपको कीवर्ड्स नहीं पता है तो आप वेबसाइट का नाम डालेंगे और वेबसाइट का नाम डालने के बाद आपको गूगल आपको कुछ कीवर्ड्स सजेस्ट करेगा। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट आता है कि आपको कीवर्ड्स पता है। पूरे प्रैक्टिस के बाद, स्टार्ट कीवर्ड्स के करने के बाद आपको कीवर्ड्स पता चल गए कि भाई मुझे इन कीवर्ड्स पे काम करना है, तो हम क्या करेंगे, हम गेट सर्च वॉल्यूम, इसमें क्या होगा कि आप वो सारे कीवर्ड्स को जब आप यहाँ पे डाल देंगे तो गूगल आपको सर्च वॉल्यूम बता देगा कि इस कीवर्ड के लिए गूगल में कितने लोग सर्च कर रहे हैं। तो दो ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 1, आप जब कीवर्ड देते हैं तो गूगल उसका रिलेवेंट कीवर्ड दिखा देता है कि आपको सजेशन दे देता है गूगल। अगर आप वेबसाइट डाल रहे हैं तो गूगल आपको सजेशन दे देता है। लेकिन जब आप क्लियर हैं कि आपको ये 20 कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है या ये 20 कीवर्ड्स हैं जो आपके हिसाब से पोटेंशियल कीवर्ड्स हो सकते हैं, तो जब वहां पे हम ये डालते हैं तो गूगल उससे रिलेटेड, एग्जैक्ट उसी कीवर्ड से रिलेटेड जो ट्रैफिक फॉरकास्ट होगा वो गूगल उठा के आपको दे देता है। तो मैं मान लेता हूं मैं यहाँ पे 5 कीवर्ड यहाँ पे डालता हूं रेंडमली, ठीक है। कंप्यूटर रिपेयर सेंटर, कंप्यूटर हार्डवेयर सर्विस सेंटर, न्यू कंप्यूटर सेल, ओल्ड लैपटॉप रिपेयर सर्विस।
और कोई इसी तरह से आप हार्ड डिस्क, बाय हार्ड डिस्क, जस्ट मैं इतना ही कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 कीवर्ड है, 5 कीवर्ड का मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई ये हमने डिसाइड किया कि इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है। सो वी विल सी व्हाट गूगल सजेस्ट, कितना सर्च हो रहा है ये हम देख सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये डाला तो गूगल हमको क्या दे रहा है, बाय हार्ड डिस्क 720, कंप्यूटर हार्डवेयर सर्विस सेंटर प्रोबेबली 10, ठीक है। ओल्ड लैपटॉप सर्विस के बारे में नहीं दिया है, तो ये हमारे लिए कुछ सजेशन, हमने यहाँ पे गूगल कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है, जो कीवर्ड आप डालोगे उसी के हिसाब से गूगल आपको दे देता है। तो ये क्या है, कीवर्ड प्लान, फॉरकास्ट या कीवर्ड आइडियाज के ऊपर अगर हम इन चीजों को अगर हम काम करेंगे तो हमको ये पता चल जाता है, राइट। तो जो कीवर्ड्स हमने डाला है उस कीवर्ड के हिसाब से ये क्या है कि ये कीवर्ड क्या है, इसके लिए गूगल में क्या क्लिक आ सकता है, एक क्लिक कितने क्लिक्स आ सकते हैं, कितने इंप्रेशंस हो सकते हैं, क्या कॉस्ट लगेगा, ये पेड एडवर्टीजमेंट की तरफ चला जाता है। बट ये आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल हो जाता है कि आप इस तरह के कीवर्ड्स के आप काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि अगर आपको एग्जैक्ट कीवर्ड्स पता है, आप वहां पे अगर कीवर्ड आप सीधा कीवर्ड आप डाल देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लीड जनरेशन, डिजिटल ब्रांडिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, जो भी है मैंने ये डाला और उसके बाद मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड क्लिक कर रहा हूँ तो गूगल हमको क्या, अरे ठीक है, तो ये हो गया। अब जब मैंने ये यहाँ पे कीवर्ड डाला है तो गूगल यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दे रहा, ये सिर्फ आपको बता दे रहा है कि कितने सर्चेज हो रहे हैं। डिजिटल ब्रांडिंग 720, डिजिटल मार्केटिंग 2,46,000, लीड जनरेशन 9,900, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग 40,500। तो जो भी कीवर्ड आप डिसाइड कर चुके हैं या पूरे एक्सट्रैक्शन के बाद आप सब कुछ करके 10 या 20 जो भी कीवर्ड्स निकाल के ला रहे हैं, वो जब आप यहाँ पे डालते हैं तो आपको क्या होता है, आपको आइडिया पता चल जाता है कि आप जो कीवर्ड चुने हैं उसका सर्च वॉल्यूम है या नहीं है, यानी क्या लोग गूगल में वो पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो सर्च ही नहीं कर रहे तो फिर उस तरह के कीवर्ड यूज करने से क्या फायदा, राइट। सर ये क्या वर्ल्ड वाइड होता है? नहीं, मैं देखिए आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे इंडिया हमने चूज किया है तो इंडिया का है। अगर मैं यहाँ पे मैं दुबई कर देता हूँ आप लोगों के हिसाब से, ठीक है, मैंने दुबई कर दिया, तो अब दुबई में कितना सर्च आएगा वो आप देख लीजिए, दुबई में कम हो गया। अगर मैं इसको मैं कोई और लोकेशन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाइना कर देता हूँ, राइट, चाइना एज ए होल कंट्री, तो आप देखिए वहां पे सर्चेस क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो अब वहां पे सर्चेस इसलिए नहीं हो रहे, बता रहा है क्योंकि वहां गूगल बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो गूगल जो डेटा दे रहा है गूगल पे सर्च को लेके दे रहा है, और चाइना में गूगल को नहीं यूज करते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, इसलिए वो आपको डिटेल नहीं दे रहा है। अब अगर मैं इसी जगह पे कोई दूसरी कंट्री चुन लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स चुन लेता हूँ या यूनाइटेड किंगडम चुन लूंगा, तो शायद बहुत ज्यादा डेटा निकल के आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने है, डेटा के अंदर डिफरेंसेस आ गए। तो आप कंट्री, सिटी, स्टेट हर एतबार से आप चेक कर सकते हो। अगर मैं चाहता हूं सिर्फ हैदराबाद में क्या हो रहा है, हैदराबाद में क्या इसका रिजल्ट आ रहा है, तो मैं उसको चेक कर लेता हूं। डिजिटल मार्केटिंग से 12,000 लोग सर्च करें, डिजिटल ब्रांडिंग 40, लीड जनरेशन 390, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग 210, सोशल मीडिया मार्केटिंग 1600। तो पता चला डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 कीवर्ड को प्राइमरी कीवर्ड बनाएंगे और इसका एक्सटेंशन हम निकालेंगे। एक्सटेंशन कहां से पता चलेगा, गूगल कीवर्ड सजेशन से पता चलेगा, जो पहला वाला टूल था कि ये 3 कीवर्ड हम निकालेंगे और गूगल क्या करेगा। अब मैं आपके सामने बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, नोटपैड पे मैं ये 3 कीवर्ड्स में शॉर्टलिस्ट कर लेता हूं। ओके, एक लीड जनरेशन ले लिया, एक डिजिटल मार्केटिंग ले लिया और एक सोशल मीडिया मार्केटिंग ले लिया। ओके,
आपको क्या करना है, आप टू एंड फ्रो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तब जाके आप फाइनल लिस्ट तक पहुंचेंगे। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, ये 3 कीवर्ड्स को चूज किया, इसको मैंने क्लोज किया। अब मैं गूगल के पास फिर जा रहा हूं वापस कि भाई मुझे कीवर्ड सजेस्ट करो कि मैं, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स आप सजेस्ट करो। तो गूगल क्या करेगा, अब इसको बेस बना के आपको रेलेवेंट कीवर्ड दे देगा। वो देखते हैं कौन सा कीवर्ड देता है। तो ये 3 कीवर्ड जो हमने चुना है वो तो यहाँ पे दे दिया। उसके बाद गूगल और भी एक्सटेंडेड कीवर्ड्स दे रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, गूगल डिजिटल अनलॉक्ड ये छोड़ दीजिए, मार्केटिंग एजेंसी वो छोड़ दीजिए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग चूंकि मार्केटिंग हो जा रहा है छोड़ दीजिए, गूगल डिजिटल मार्केटिंग आपसे रिलेवेंट है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो आप इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एजेंसी, तो आप इस तरह के कीवर्ड्स को आप यहां से चुन सकते हैं। और 2500 कीवर्ड्स दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्ट कर लीजिए कि जिसका हाई सर्च वॉल्यूम है उसको आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया कि वो ऊपर आएगा। अब यहां से आप कीवर्ड्स आप निकाल लीजिए जो कि आपके मतलब का कीवर्ड्स है, आप उसको शॉर्ट कर करके आप नोटपैड में या एक्सेल शीट में सेव करते जाएं। एंड एंड ऑफ द डे आपको क्या होगा कि एक 20, 30, 40, 50 कीवर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। उसमें से हमको कौन सा कीवर्ड चुनना है, कैसे कीवर्ड को चुनना है, वो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा। बट ओवरऑल आज का डिस्कशन ये था कि कीवर्ड को चूज करने के लिए गूगल का क्या टूल है जिसको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हुए आइडिया ले सकते हैं कि हमको कौन से कीवर्ड का के ऊपर काम करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप इस तरह के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। अब मैं इन कीवर्ड्स को मैं चाहता हूं कि भाई मैं सेव कर लूं, बार बार मैं क्यों ये करूं, मैं इस कीवर्ड को क्या करूंगा, मैं डाउनलोड कर लूंगा। तो ये मैं डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पे रख सकता हूं और उसके बाद जो कीवर्ड मुझको चूज करने मैं चूज कर लूंगा, जो हटाना है वो हटा लेंगे। अब आप ये कहिएगा कि यहाँ पे तो 2500 कीवर्ड है, 2500 कीवर्ड्स है, तो मैं कितने कीवर्ड्स को गो थ्रू हूं। तो भाई अगर आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को लेके इतना सीरियस हो, तो आपको अपने कीवर्ड्स के ऊपर काम तो करना पड़ेगा। अब जब अप्रोप्रिएट कीवर्ड आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको एडवांटेज क्या होगा कि आप इस कीवर्ड को सोशल मीडिया में जो हैशटैग यूज करते हैं उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द पॉपुलर कीवर्ड्स। समझ रहे हैं आप लोग? तो कीवर्ड रिसर्च इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपको सोशल मीडिया में भी काम आएगा, एसईओ में भी काम आएगा, ये आपको गूगल में भी काम आएगा, ये आपको लीड जनरेशन प्रोसेस में भी काम आएगा, या कहीं पे भी कोई मार्केटिंग मटेरियल आप बना रहे हैं, ब्रोशर बना रहे हैं, फ्लायर बना रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, तो वहां पे टेक्स्ट में किस तरह के कीवर्ड्स हमको यूज करने चाहिए, तो ये भी आपको पता चलेगा। अब जैसे ही मैं ये कीवर्ड निकाल लिया तो गूगल आपको किस तरह का ऑप्शन देगा वो मैं आपको बता देता हूं, सो दैट आपके सामने ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक्सेल शीट में अभी आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं, जो कि अभी अभी डाउनलोड किया हूं, जो मैं आप लोगों के सामने था। तो ये वो एक्सेल शीट है जो कि मैं डाउनलोड किया हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स हैं। ये INR जो करेंसी है, इस कॉलम को आप हटा दीजिए, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये आपका मंथली सर्च वॉल्यूम है, बस इसी के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, और किसी की तरफ आपको नहीं ध्यान देना है। बाकी सारी चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है हम बाद में बात कर सकते हैं, हम बाद में देख सकते हैं, लेकिन अभी हम इस चीज को हम हटा देंगे। तो हमारे सामने ये आ जाता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग, ये कीवर्ड्स क्या हैं, ये कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, हम ये कर सकते हैं। अब ये बेसिक है कि आप एक्सेल शीट को सॉर्ट कर सकते हैं, उसको डिलीट करके कुछ ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके हिसाब से आप सॉर्ट कर लीजिए। आपको टॉप पॉपुलर परफॉर्मिंग कीवर्ड्स लेना है, जैसे भी कीवर्ड्स लेना है तो आप सर्च कर सकते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स इसमें आपके रिलेटेड अप्रोप्रिएट हो सकता है, वो कीवर्ड आप चूज कर सकते हैं। क्योंकि 2500 कीवर्ड है तो मैं बहुत ज्यादा लेके नहीं जा रहा हूं, मैं आपके सामने 200 कीवर्ड तक मैं सॉर्टिंग कर लेता हूं। उसके बाद की चीज आप लोग खुद अपने हिसाब से, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ आप लोगों को थॉट प्रोसेस बता देने का है और उसके बाद बाकी चीजें आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर एग्जाम्पल अप टू 200 रोज मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं चूज कर लूंगा कि जो मेरे लिए बेस्ट परफॉर्मिंग कीवर्ड होगा उसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम डेटा में जाके इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने में आपको ऑप्शन आता है कि भाई सॉर्ट बाय एवरेज मंथली सर्चेस, और ये कॉलम आपको देता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लीजिए। मतलब जो सबसे ज्यादा सर्च वाला है
वो ऊपर आ जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा। अब इसमें देखिए कि सबसे पहला डिजिटल मार्केटिंग है, चलो ये ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी ठीक है। गूगल डिजिटल अनलॉक, ये समझ नहीं आ रहा ये हमारे रिलेटेड होगा नहीं होगा। डिजिटल मार्केटिंग इज, ये भी छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, गूगल डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो कुछ कीवर्ड्स हम हटाते चले जा सकते हैं। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, सर्विसेज, लीड जनरेशन, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एजेंसी, इसको भी हम हटा सकते हैं, मार्केटिंग एजेंसी को भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब क्यों हटा सकते हैं इस डिस्कशन पे नहीं जा रहा हूं। जो आपको लगता है कि आपके लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है वो आप रखिए, जो लगता है अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता वो हटा दीजिए। तो मैं कीवर्ड कम यहाँ पे रहे इसलिए मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को मैं हटा रहा हूँ। परफॉर्मेंस मार्केटिंग हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये हम ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं रहेगा। गूगल गराज हटा दीजिए। मीडिया एडवर्टाइजिंग, तो आप जब यहाँ पे देखिएगा तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो आप जब ये आप सॉर्ट कर लिए, अब क्या करेंगे, आप इसको अल्फाबेटिकल सॉर्ट कर लीजिएगा ताकि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स एक तरफ आ जाएं, सोशल मीडिया से रिलेटेड एक तरफ आ जाएं, बाकी से रिलेटेड एक तरफ आ जाएं, एक साथ आ जाएं। फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं, अच्छा इससे मुझे ये कीवर्ड निकालना, इससे ये कीवर्ड निकालना, इससे ये कीवर्ड निकालना है, राइट। तो ये गूगल शीट का एक्सरसाइज जो है ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप लोगों को अपने लेवल पे ही वर्कआउट करना पड़ेगा। बट दिस इज जस्ट एन आइडिया कि आप कैसे कीवर्ड सिलेक्शन प्रोसेस को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे उसको कर सकते हैं। होप आई वाज एबल टू मेक सम सेंस, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ समझे होंगे कि कैसे हम लोग कीवर्ड सिलेक्शन कैसे करते हैं। यस सर, यस सर। ठीक है, तो सर मेरे लिए तो बहुत अप्रोप्रिएट हुआ ना, मैं तो ट्रैवल एजेंसी का आप तो पहले ही दिखा दिया, तो मेरे को मैं बैनर और लोगो बहुत सारा पिक्चर एक ही साथ कर ली थी, किंतु अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं आ रही थी। तो आज बहुत ठीक है, बहुत अच्छा लगा। मैं ये तो मेरे को हाँ, काम आएगी, बहुत अच्छा काम लगेगी। मैं तो अपनों अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अब हेलो? आप लोगों से, हाँ, अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब थोड़ा सा म्यूट कर लो ना, जिसका भी, हाँ ठीक है। तो जिसका भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लोग अपने अब मैं किसी का वेबसाइट रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं। कोई अगर पूछेगा तो मैं आइडिया दे दूंगा। तो मैं आप लोगों को जितना आज तक स्ट्रेस दे रहा था कि व्हाई यू शुड वर्क ऑन सम कंटेंट, थोड़ा सा पैराग्राफ लिखो, थोड़ा सा कुछ लिखो, क्यों लिखो, तो इसलिए कि विक्स में अगर आप बना रहे हो तो साइट को कंप्लीट करो, कंटेंट वहां डालो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर मेकिंग अ वेबसाइट फॉर पीपल, और पीपल कहाँ पे हैं, वो गूगल पे है। तो आपकी वेबसाइट अगर गूगल पे ही नहीं आएगी तो आप काम कैसे करोगे। ओके, तो थोड़ा समझ में आया कीवर्ड को लेके। हाँ सर, हाँ। मैं कल फिर इस चीज को रिपीट करूंगा, इसी से मिलता जुलता टॉपिक रिपीट करूंगा, थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा ताकि आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। जब ये टॉपिक क्लियर, फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आदमी कहता है हैशटैग में क्या मैं यूज करूं, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी आ रहा है, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ रहा है, फिर लीड जनरेशन भी आ रहा है। उसी तरह से अगर आप कोई जो है टूरिज्म वाला है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, कोलकाता टूर, तो हैशटैग कोलकाता टूर, हैशटैग कोलकाता टूर एजेंसी, हैशटैग कोलकाता पॉपुलर प्लेसेस, हैशटैग वीकेंड टूर। ठीक है, उसी तरह से जो है आप शांति निकेतन का आ गया या किसी और का आ गया, ठीक है, कोलकाता पिलग्रिमेज टूर, ठीक है, या टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कोलकाता, तो ये सब हैशटैग में जा सकता है। तो जब आपको कीवर्ड पता चल जाता है तो आप उसी कीवर्ड को हैशटैग में कन्वर्ट करके आप उसको सोशल मीडिया पे भी यूज कर सकते हो। तो हम कल थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे कीवर्ड को लेके, उसके बाद हम लोग फिर सोशल मीडिया की तरफ जाएंगे कि कैसे हम लोग सोशल मीडिया पे कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और फिर एक एक ऑप्शन, यानी फेसबुक पे कैसे कैंपेन क्रिएट करेंगे, पेड ऑप्शन, फ्री तो आप लोगों को पता है, लेकिन बिजनेस पेज कैसे क्रिएट किया जाएगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फिर लिंक्डइन पे, उसी तरह से ट्विटर पे कैसे एडवर्टीजमेंट होगा, इंस्टाग्राम पे कैसे एडवर्टीजमेंट होगा, लिंक्डइन पे कैसे एडवर्टीजमेंट होगा, ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम लोग जाएंगे ईमेल मार्केटिंग के ऊपर जाएंगे, फिर मैं स्लोली कीवर्ड के ऊपर आके गूगल एड्स के ऊपर जाते हुए फिर मैं एसईओ और गूगल एड्स एक साथ लेके आप लोगों को
कंप्लीट इस तरह के स्ट्रक्चर में जाऊंगा, राइट। तो कल का एक दिन और आप लोगों को कीवर्ड एनालिसिस के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। हो सकता है आप लोगों में से किसी एक को मैं ये कहूं कि आप डिमॉन्स्ट्रेट करो कि कीवर्ड चूज कैसे किया जाएगा। तो जिसके पास भी लैपटॉप हो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, और कल आप लोग डिमॉन्स्ट्रेट करोगे मुझे कि भाई कीवर्ड सिलेक्शन कैसे होगा, ताकि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें कि कहाँ पे हमने सही समझा है, कहाँ पे हमने सही नहीं समझा है। ठीक है, ओके। तो कल कौन डिमॉन्स्ट्रेट करेगा आप लोगों में से कीवर्ड सिलेक्शन प्रोसेस को? कल कौन डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला है वॉलंटरली, बताओ। एनीवन? सर मैं कर दूंगा। बिस्वा, चलो एक बिस्वा हो गया। दूसरा किसी और के पास जो लैपटॉप हो बताओ, लैपटॉप या डेस्कटॉप? तो मैं करूँगा सर। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। विश्वा आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये वीडियो जो हमने शूट किया है अभी, जो क्लास का वीडियो है, ये मैं आज ही रात में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, कल की तरह लेट नहीं करूंगा। एक्चुअली हो ये रहा है कि क्लास के बाद मैं रात में बहुत ज़्यादा देर तक अभी नहीं बैठ रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्थ के इशू की वजह से, तो इसलिए लेट हो जा रहा है। बट मैं आज कोशिश करूंगा आज ही मैं आप लोगों को भेज दूँ ताकि आप लोगों को डिले, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो आप यकीन जानो, यू बिलीव माई वर्ड्स, अगर ये 2-3 चीजें आप लोग सही से सीख लिए ना, तो आप मान के चलो कि भले आप एक्सपर्ट अभी एक 45 डेज में एक्सपर्ट नहीं होगे, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि आप गो गेटर टेंडेंसी में चले जाओगे। एंड देन आफ्टर दिस वीक आई विल ऑल्सो शेयर यू गूगल गराज का एक मैं लिंक शेयर करूंगा आप लोगों को, सो दैट जो भी अभी तक मैं पढ़ाया हूं धीरे धीरे करके और उसके ऊपर भी आप पढ़ना शुरू करें, सो दैट अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी एंड बाय एंड ऑफ इट, क्योंकि वो भी आपको 40 आवर्स लेता है करीब करीब, ठीक है। इट इज क्वाइट डिस्क्रिप्टिव थिंग, और वो वीडियो भी है, उसमें टेक्स्ट भी है, तो आपको अच्छा लगेगा। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप में से बहुत सारे लोग गूगल का सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो, तो उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। अभी से ही उसको पढ़ना और सुनना शुरू करो, सो दैट जब हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो ये गूगल का सर्टिफिकेट इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सर्टिफिकेट है, इसलिए ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन अप कर देगा। बट ओनली थिंग रिक्वायर्स इज परसिस्टेंस एंड कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑन दोज थिंग। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं कि ये गूगल का सर्टिफिकेशन है, बट एक्चुअली आपको ही उसके अंदर पढ़ के और एग्जाम जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको अपीयर होना है, उसको आंसर करना है, तभी गूगल देगा। वहाँ पे कोई प्रॉक्सी नहीं चलता, सबका अलग अलग क्वेश्चन होता है, तो इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा वहाँ पे हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बट कल एक बिस्वा जो है, कल जो है आप एक गूगल टूल का आप डिमॉन्स्ट्रेट करोगे, सुशीत सर करेंगे, और कोई और जिसके पास लैपटॉप हो वो भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, लर्न कर लो, सो दैट हम लोग कल उस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सर। थैंक यू, Okay, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। टेक केयर।